आणि पुन्हा एकदा वळूयात मनोरंजन विश्वाकडे, कारण पठाण चित्रपटाच्या यशावर शाहरुख खान चाहत्यांशी संवाद साधतोय. थेट जाऊयात. Unfortunately, I was on a very, very strict diet, so I couldn't have his pizzas too often. But yeah, he's a good singer. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं ये आपने कभी फील किया? Atmosphere to work in, and I think that's what the audience is taking back as well. But I think more importantly, the intent with which we made this movie, with just pure love and joy, and to bring the audience together and to hopefully bring joy into their lives. That was the intention. It was pure, and I think that's what we're seeing today. वाह, क्या बात है. इस समय जॉन मौजूद हैं, जॉन जिम. क्या बात है यार. तो कैसा लगा आपको जब पहला नरेशन दिया गया होगा? इतना हैंडसम, धूम मचा ले. Come on you people. सबके लिए गाना करूंगा जी. हाँ, सबके लिए. तेरी बारी भी आने. जॉन माइक्रोफोन लीजिए. तो ये जिम का कैरेक्टर यार बहुत कमाल. मतलब पहला क्या नरेशन मिला आपको, क्या बोला गया था? नहीं, पहले तो मैं ये मौका नहीं मिलेगा, सो आई वुड लाइक टू से दिस ऑन स्टेज. जो आदमी यहाँ पे नहीं है, आदित्य चोपड़ा. मैं आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य चोपड़ा, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे पोजीशन करते हैं, जैसे धूम में, न्यूयॉर्क में और आज पठान में, आई थिंक आई गिव ऑल क्रेडिट टू आदित्य चोपड़ा फॉर सिटिंग हियर फर्स्ट. उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर है यहाँ पे, आई थिंक ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर presenting me and the entire cast for the way we've been presented. Congratulations, Sid. You're the hero of this film also. So Lolly, congratulations. वो Sid का pet name है Lolly. Okay. और very important, मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिला. Like we all say Shahrukh today is I don't think he's an actor anymore. He's an emotion. क्या बात है. बिल्कुल सही. It's beautiful. इसीलिए I nearly went to kiss him in a lot of the scenes. So it was a beautiful experience. And Deepika के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ पहले, but seeing her growth always makes me happy. जो मैंने कहा भी, she's a wonderful person. तो पहले तो, और इसके अलावा सॉरी, आई जस्ट वांट टू थैंक अ फ्यू पीपल इफ इट्स ओके. हमारे जो एडिटर है आरिफ, हमारे राइटर अब्बास, हमारे जो स्क्रीन प्ले पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, हमारे टेक्नीशियंस श्रीधर राघवन, सचित जो हमारे कैमरामैन है, रजत जो हमारे प्रोडक्शन, सचित पॉलोस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर है, और संचित हमारे जो बीजीएम है. आई थिंक यू ऑल एंजॉय द बीजीएम इन दिस फिल्म. आउटस्टैंडिंग. विशाल शेखर, हु हैज गिवन 2 fantastic songs without me. but fantastic songs. And when you see those songs and you see Shahrukh and Deepika, I think you see probably the most beautiful man and the most beautiful woman in that song. They're beautiful. So congratulations. So I think Inko and the entire team, Manan and all of you, Akshay Vidani and everybody at Yashraj, जिस तरीके से इन्होंने इस फिल्म को माउंट किया है, I think that's very important. A producer is the real hero of a film. I think he's on top there, and I think Aditya Chopra deserves all the praise. And when you see someone like Shahrukh after 4 years and coming in and looking so good, and probably I'd say मैं सोचा था कि मैं एक्शन हीरो हूं, but I think Shahrukh is today the number 1 action hero in the country. Yeah. So it's just a nice gathering here. मुझे पता नहीं ये हमारी लाइफ का, I think it's going to be my biggest hit for a long time. I don't know, but I just wanted to thank everybody who's important. ये मेरे लिए बहुत जरूरी था. So thank you everyone, and thank you to the media and the fans who have supported this film all the way through. So a very big thank you to everyone in the media. You all have been superb. And all Shahrukh Khan fans, all Deepika Padukone fans, and some of my fans, I love you, all of you, I love you all.
You know, I mean, fantastic. So I think I've covered most of. वेरी गुड Yeah, yeah. प्रोड्यूसर नहीं है मतलब प्रोड्यूसर काम पूरा कर दिया आपने नहीं, ये बहुत जरूरी था मेरे लिए yeah. क्योंकि आदित्य चोपड़ा इज अ लिटिल लाइक आई बिलीव लाइक मी बिकॉज आई लाइक बीइंग प्राइवेट और वो बहुत ही प्राइवेट आदमी है. आई थिंक शाहरुख नोज हिम द बेस्ट. ही इज वेरी स्केयर्ड ऑफ ही डजंट कम आउट इन द मीडिया. तो उनको थैंक यू कहना बहुत जरूरी था. ही इज रियली वेरी फैंटास्टिक. क्या बात है मतलब पूरी टीम को लाना एक साथ बनाना और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद. एक बार जोरदार ताली चाहिए सिद्धार्थ के लिए. कम ऑन गाइस. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. क्या बात. तो ये हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख और आप अपने गाने को सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं. पीछे से आप वो मैं करूंगा. करेंगे ना. करेंगे इसके बाद. ओके तो वॉर एक बड़ी फिल्म यार मतलब मानना पड़ेगा. उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान. कैसा था रिएक्शन जब धीरे धीरे मैसेजेस आने लगे लोगों के रिएक्शन आने लगे. तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली ये पहली बार मैं 20 सालों से फिल्में बना रहा हूँ एंड आई बीन सेइंग इट. ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था. आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 days बिफोर द रिलीज दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले. तो मुझे बहुत अच्छी आती है. अच्छा. और मैं आराम से उठता हूँ और हर पिक्चर में गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए गेटी 12 बजे के शो पे और मैं हमेशा 11:45 बजे उठा हूँ हमेशा और मैं भाग के गया हूँ गेटी. इस टाइम हम लोग साथ में थे आई थिंक 3 बजे तक 3-4 बजे तक और मैं सोया ही नहीं. और क्योंकि उसका एक रीजन और भी है क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था. तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज हो रही थी सुबह. तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक धक शुरू हो गई थी. एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था एंड अब पता चला क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी. तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी एंड वो पूरी हो गई. एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा. पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा अगर रात को जगना चाहते तो सिर्फ शाहरुख खान ही है. ना सोता है ना सोने देता है. बस गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ गाने भी गाते बहुत गाते हैं. तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे ऐसा कुछ. ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसने ना सुबह 6:30 बजे फोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. Okay. मैं भी उठ गया. हाँ. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो. इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे. नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा मैं. तो मैं बहुत डर गया और मैं अब बिल्कुल उठता भी हूँ. हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माई सेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाफ पे कहूंगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस विच इज स्टिल नॉट संक इन. अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं. एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में जो हमारा पहला इंटरव्यू है हम कुछ ज्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का. वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, all the media, and also I would like to say the powers that be, because there were times when we had to make calls to people and say कि please हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें. And they all took charge of it and we were so happy that the film was released with so much. मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें. हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और मेरे को लगे 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी. But still it should not hurt anyone. It should not disturb anyone because film watching, film making, film experience is an experience of love. And we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing. Just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world. Because film का और कुछ काम नहीं होता, छोटी सी चीज होती है यार. Actually film में कुछ बड़ी चीज नहीं है. Entertainment है, खुशी का एक जरिया है. So if it can just come out with love and people enjoy it with love, और ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं. हर तरह की चीजें आती हैं अच्छी और बुरी. But I think there should be a lot of happiness and love when parents, children, families go to watch films in cinema theaters. Boyfriends, girlfriends, husbands, wives, brothers, sisters, they should just feel happy that this film was an experience more than just an empty pack of popcorns. It should be nice and I'm so happy it's happened. I love you too. मैं भी शुरू कर रहा हूँ डेटिंग सर्विसेज के बाद. नेक्स्ट वीकेंड से सब अपने टेलीफोन नंबर भेज देना. I'll be there. Happy New Year to you too.
सिर्फ प्यार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। शाहरुख से मैंने आज से बैंगलोर का प्रेम इधर भी दो भाई। मंडा बंडी। शाहरुख से मैंने 12 साल पहले पूछा था कि शाहरुख फिल्म का क्या होगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे OTT ये वो बहुत सारे होते थे। शाहरुख ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि फिल्म कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन होगा। अगर आप अपने परिवार के साथ मजे करने जाना चाहते हैं, आप जाइए आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, बढ़िया खाइए पीजिए पूरे दिन भर में, एंजॉय कीजिए, उसमें से 2 घंटे 3 घंटे हमारे लिए भी रख दीजिए आप, और उसके बाद आप खूब बच्चों को खिलाइए कूदिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन हो जाएगा। और वाकई शाहरुख इतने सालों बाद 15 साल के बाद वही फील कर रहा हूं जो इन्होंने बोला था, और ये आपने सेम चीज रिपीट की, इसलिए कंग्रेचुलेशंस। शाहरुख कैसा लगता है? अभी मैं देख रहा था, कल ये परसों कुछ वीडियो देख रहा था, हमारे यहाँ कुछ परिचित लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग बता रहे थे कल शाम को इतने हजारों लाखों की जनता वहां मौजूद थी और आप सबको इस्तकबाल कर रहे थे। कैसा फील करते हैं आप जब फिल्म हिट जाती है, जब आपको इतना प्यार देते हैं? एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे थैंक यू, मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं। अगर कुछ चीज ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स। लाइफ इज लाइक दैट, इट इज मेंट टू बी लाइक दैट, दैट देयर विल बी गुड डेज एंड देयर विल बी बैड डेज, एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज। तो मुझे किसी ने कहा था, देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर। उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं। एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं। तो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूं, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूं। कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे उसने हमेशा के लिए बैल्कनी का टिकट दिया हुआ है। $500 करोड़ पूरे। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ वक्त दे देते हैं इन लोगों को, उसके अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तकबाल कीजिए, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ये अनुराग को पता नहीं है, 2 मिनट में कुछ नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। दीपिका, गेटी गैलेक्सी गई थी आप, और आपने जो प्यार देखा, मैं जानता हूं जब दीपिका बहुत खुश होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े नम हो जाती हैं, बहुत ही इमोशनल हैं। तो हाउ वाज द रिएक्शन कल आपने जब देखा गेटी गैलेक्सी में, इतनी पब्लिक, इतना क्या रिएक्शन था आपका उस समय? ओह, मैंने कहा था ना, देखो आंखों में आंसू आ जाएंगे। खुशी की, यस ऑफ कोर्स। It felt amazing. यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है, इतने दिनों से, मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला। और एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन मैं जाना चाहती थी, नहीं हुआ। बट आई थिंक टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लव, especially I think what the world has been through, the fact that a movie like this can bring people together, that it can bring the world together, that it can bring so much joy into people's lives and celebration. It almost feels like a festival ki kuch tyohar hai. Yes. And the fact that we've been able to, this sort of festive celebration in the air, it feels incredible. It feels incredible, and most importantly, जैसे मैंने कहा, when you work with honesty, when you work with integrity, when you work with, you put your head down and you just keep going, and when you see this love, this appreciation, it feels all worth it. क्या बात है दीपिका, अभी किस बात में आप इमोशनल हो गए थे, जरा बताइए कैसे, ये खुशी के आंसू किस बात के थे? अरे कौन सी बात लग गई आपको, प्लीज शेयर कीजिए। अरे जरूरी है, हजारों लोग जानना चाह रहे हैं।
कोई सी बात तो आपके दिल को टच की, बोलो ना। जॉन की बॉडी, ओह। जॉन की बॉडी देख के, जॉन की बॉडी, जॉन की बॉडी देख के। अच्छा उनको देख के आप इमोशनल हो गई? नहीं सीरियसली बताओ ना, कौन सी शाहरुख की कोई बात ऐसी लगी? कि मेरी जो बॉडी थी फिल्म में अब नहीं रहा। तो अधिकतर शाहरुख के साथ जितनी भी फिल्में की आपने माइंड ब्लोइंग थी, जैसे आप पर्दे पर आती हैं, जब आप फाइट भी कर रही थी तो ओफ लोगों ने इतनी तालियां बजाई ना। यस। तो अधिकतर तो आप प्यार करती हैं, लेकिन इस बार तो आपने लड़ाई भी की इनसे, है ना? तो इस केमिस्ट्री के बारे में बताइए, कैसी रही ओवरऑल? क्योंकि अधिकतर फिल्मों में ऐसा होता है ना कि आप जब जोड़े में होते हो, पेयर होता है, अलग किस्म को होता है केमिस्ट्री। इस बार कुछ अलग था और हर मुलाकात में रिश्ते बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैसा रिश्ता रहा इस बार का? क्या? Well, I think it was interesting that we got to do that. You still the chemistry is still so palpable, but our characters were so different. I don't think you've seen either of us play characters like we have in Pathaan. But I think what makes it special is beyond what's on paper. I think whether it's Om Shanti Om, whether it's Chennai Express, whether it's Happy New Year, or now, or even Love Mera Hit, that one song. Yes. That we did. I think what makes it special is the relationship that we share, the love that we share, the trust that we share. I have great respect for him as an artist, but even more as a human being. I wouldn't be here today, and everyone knows that. I wouldn't be here today if it wasn't for Shah Rukh Khan and his vision for me. And even then, in my first movie, मुझे कुछ नहीं पता था. I'd never been on a film set, but to shower me with so much love and grace, he's given me confidence. I don't think even he knows that. I do what I do with confidence because I know he'll always be there for me. And I think it's that relationship that eventually translates on screen, and you see these amazing characters and this amazing chemistry. क्या बात है। और दीपिका को पता था जब वो बोलेगी ना, दीपिका को दीपिका 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 दीपिका। ओके बस अब मैं ही लूंगा उसका नाम प्लीज। थैंक यू गाइस। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब दीपिका मुझे फिल्म में बोलती है पठान, आई एम सॉरी, उसको पता था कि मैं फिर दौड़ा वापस चलाऊंगा उसके पास। शी नोज डीप डाउन इनसाइड। एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन अ स्मॉल थिंग हियर, सॉरी आई डोंट मीन टू टेक अवे टाइम ऑफ एवरीवन ऑन स्टेज, लेकिन इस फिल्म के दौरान एक बहुत स्पेशल चीज़ थी। आदि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, सिड को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इनकी खूबसूरत वाइफ हैं जो दिल की बहुत ही अच्छी है, ममता। John, like I said, I've known Deepika. But I'll tell you what I felt on the set, because I was coming on the sets after many years, a couple of years or more than that. And every shot that we've given, even before we've walked in here from backstage, I know in everybody's heart, that is Deepika, John, Sid, all the people, Adi, Mamta, everyone. सह प्रायोजक प्रभु जी, मिठाई हो या नमकीन, बस मौका चाहिए जी। प्रभु जी। पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात सरासरी 60 ते 65% मतदान झाल्याचा अंदाज, काही बुथावर 75% मतदान। शुभांगी पाटलांनी मतदानाच्या दिवशी हात जोडत प्रचार केल्याचा आरोप, अधिकाऱ्यांना तात्काळ रोखलं। धनुष्यबाणावर दोन्ही गटाकडून आयोगाकडे लेखी युक्तिवाद सादर, संख्याबळ लक्षात घेण्याची शिंदे गटाची मागणी, तर ठाकरे म्हणतात फरक पडत नाही। हसन मुश्रीफांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची सोमय्यांची मागणी, काळ्या पैशा प्रकरणी अडकणार असल्याचा दावा। कराडमध्ये अमित ठाकरेंसाठी मनसेची बाईक रॅली, पक्षवाढीसाठी दौरे कायम। मुसळधार बर्फवृष्टीत श्रीनगरमध्ये राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेचा समारोप, बर्फवृष्टीत छत्री नाकारली, खरगे अब्दुल्ला कुटुंबियाची सभेला हजेरी। नवनीत राणांना कोर्टाचा 1000 रुपयाचा दंड, वडील हरभजन सिंह फरार घोषित, जात पडताळणी प्रकरणी झटका। पठाणची जगभरात 542 कोटींची कमाई, देशातला गल्लाही 335 कोटींवर,
अवघ्या 5 दिवसात रेकॉर्ड ब्रेक कमाई. नमस्कार, मी करणसिंह पवार. आपण पाहतात न्यूज स्टेट. तर आता एक ब्रेकिंग बातमी इथे. पठाणने रिलीजच्या अवघ्या 5 दिवसातच जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर ये 17 जो रिकॉर्ड टूटे वो अपने आप में हैं, यूनिक हैं. सबसे पहली बात तो ये जितने लोग यहां मौजूद हैं इन सबकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए. फिर फास्टेस्ट हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अगर किसी ने 100 करोड़ सबसे पहले इन्होंने तोड़ा, इसलिए जोरदार तालियां पठान के लिए. सबसे हाईएस्ट फास्ट मतलब फास्ट 200 करोड़, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. 250 करोड़, जोरदार तालियां होनी चाहिए. और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की हर फिल्म को अगर एक साथ पिरो दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट तेज फास्ट अगर किसी ने बनाया हो वो आपने बनाया, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. जिम का कैरेक्टर इतना कमाल था और इतना हैंडसम लड़का था. हाय, मेरे पड़ोस में 3-4 कन्याएं बैठी थी तो बोले अरे देखो ना. तो कौन सा कैरेक्टर आपको लगा जिम का कि यार ये मुझे बहुत, ये शायद मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कमाल लगा मुझे? क्या लगा आपको? नहीं, सिद्धार्थ ने आपसे. जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसने मेरी स्टाइलिंग की पठान में, वाइट शॉर्ट्स जो मैंने पहने थे, जी, जी, उसी की बात कर रहा हूं मैं. The iconic white shorts. ममता यहाँ पे है. ममता, थैंक यू सो मच. ममता जी हाथ लगाइए. आज फाइटर के प्रोड्यूसर है एंड शी इज सिद्धार्थ आनंद वाइफ, लवली वाइफ. शी स्टाइल्ड मी. तो ममता, थैंक यू सो मच. और हमारे जो एक्शन डायरेक्टर्स है केसी, क्रेग और रॉड, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें. आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जो भी जितने सारे एक्शन सीन्स शाहरुख और मेरे थे, डिड यू लाइक द एक्शन? तो एक्शन शॉट्स के बीच में शाहरुख और मैं वी यूज्ड टू हैव टी. हेलो जॉन, हाउ आर यू? एंड नेक्स्ट बूम 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 बूम. बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन. वी हैड अ ग्रेट टाइम. तो इनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, आई थिंक. And the way Shahrukh and Deepika also have been styled by Shalina, outstanding. So I think credit to all these people for making the film look so good. मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि यही एक मौका है मेरे पास. So आई नो जॉन, समझ रहा हूं कि प्रोड्यूसर काम आज आप पूरी तरह से कर रहे हैं शाहरुख. नहीं, मैं John, if you do more interviews, then you can say more thank yous. So I want to say one thing, which I'm not saying it because मैं एज में तो इन दोनों से छोटा हूँ, दीपिका से भी और जॉन से. हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो बिकॉज मैं 6 साल की उम्र में शुरू हो गया था पिक्चरों में. सर, आई जस्ट वांट टू से, सो इट शुड नॉट साउंड पेट्रनाइजिंग बट आई एम टॉकिंग एज एन ऑडियंस. आई जेन्युइनली फील, मैंने सिद्धार्थ को भी बोला है, आदि को भी बोला है, बट जब मैं जॉन को बोलता हूँ तो वो शर्मा सा जाता है, समझता मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार हम काम कर रहे हैं. बट आई रियली डू बिलीव द बैकबोन ऑफ पठान एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर एंड एसेइंग दैट रोल, the best thing in Pathan is Jim played by John. दूसरा, जॉन को पिक्चर में लो तो कपड़ों का खर्चा भी कम होता है. निक्कर बस पहन लो, हो जाएगा, तो वो भी अच्छा होता है. एंड यू नो, टू प्ले अ बैड गाय हु इज सो, नॉर्मली बैड गाइज जब लोग प्ले करते हैं तो सिर्फ शक्लें ही बनाते रहते हैं. But to be rightly bad and to just take a cynical viewpoint of the world, and obviously the director, the writers, everybody has justified the character, but to play it with such strength. And second, I just want to tell everybody कि मुझे गिना चुना ही एक्शन आता है. मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, but in the motorcycle sequences, in the fight sequences, he's been so gentle and kind with me. ये बार बार रिहर्सल करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सीखना चाहता है. 3 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि he just wanted me to be correct and not get hurt. So I thank him from the bottom of my heart for being so kind to me. Oh, lovely shot. सिद्धार्थ, मतलब that's the romance. That's the real romance. रोमांस. हैं कहीं पर, लेकिन धाड़ भेज रहे हैं. अच्छा, just one correction. Shahrukh Khan is not back. He had just gone for a loo break. He was always there. सिद्धार्थ, आप तो नंबर 1 डायरेक्टर हो चुके हैं पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. या हो चुके हैं, हो गए कि नहीं हो गए? एक बार जोरदार तालियां चाहिए.
आप बोले ना बोले, अच्छा नहीं, वो आप बोल सकती हैं। देखो क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं एक्चुअली, सुनाई नहीं दिया मुझे। नंबर 1 हीरोइन ने क्या बोला है? नंबर 1 हीरोइन ने बोला कि आपका पेट नेम बोला है। हाँ जी। क्या नाम है, पेट नेम क्या है? क्या पेट नेम क्या है? अरे कुछ तो बोलते हैं लोग आपको। बहुत प्यार से मुझे नंबर 1 डायरेक्टर बोलते हैं। तो नंबर 1 डायरेक्टर प्लीज आप ये बताइए कि जो ये फाइट सीक्वेंस था जी, ये बहुत ही यूनिक था और आई थिंक ये मतलब कौन सा 6 सीक्वेंस है फाइट के? भाई इस फिल्म में, भाई इस फिल्म में जी, इस फिल्म में तो एक ही फिल्म थी, इसमें जो सीन्स थे वो बड़े यूनिक थे, मैंने तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे नहीं थे जी। तो इसके लिए क्या सोचा था आपने, क्या प्लान किया था कि यार फाइट सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जहां पे जॉन और शाहरुख हो? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है शाहरुख सर का और जॉन का एज एंटेगनिस्ट बहुत प्रॉमिस देता है कि एक्शन एक लेवल का हो जो ऑडियंसेस बार बार जाके देखें, एंटरटेनिंग हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। इसलिए काउंटलेस लोग गए हैं 2, 3 बार 5 दिन में देखने के लिए। ऐसा ज्यादातर एक्शन फिल्म्स में होता नहीं है, बट आप में से सब किसी ना किसी को तो जानते होंगे जिसने 2 बार देखी होगी पिक्चर। देख लो भाई, मैंने भी 2 बार देखी है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट था कि एंटरटेनमेंट लाएं। एक्शन बड़ा तो होगा, बट आई थिंक एक्शन को स्क्रिप्ट करना जरूरी है, जो हमने किया। काफी मेहनत की, 2 साल स्क्रिप्ट की इसको, एंड इसलिए आप इतना एंजॉय कर पा रहे हैं। वरना एक्शन विदाउट इमोशन बहुत बोरिंग होता है एक पॉइंट के बाद। एंड इन्होंने एंटरटेनिंग रखा, बहुत रिहर्सल्स की और बहुत मजा आया शूट करने में एंड ऑडियंस को देखने में। क्या बात, स्क्रिप्टिंग यस, एक्शन में पहली बार शायद हिंदुस्तान के। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल, बिकॉज ये लोग जो हैं सबके सब बड़े शाय हैं, स्पेशली सिद्धार्थ एंड जॉन, ज्यादा बातें नहीं करते, बट ऑनेस्टली स्पेशली विद दीपिका एंड माई सेल्फ एंड जॉन ऑल्सो, सिद्धार्थ जब एक्शन करते हैं तो उसकी सेफ्टी जो है उसको बहुत मद्देनजर रखते हैं। आई थिंक ही इज एंड एक जो सेट के ऊपर खुशी का माहौल रखते हैं। इट नेवर लुक्स लाइक, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग स्टंट्स विच वी हैवंट डन and we are scared to do it first time after rehearsal also, तो डर तो लगता ही है। लेकिन the way Siddharth keeps the atmosphere, you become so relaxed on the sets. I know John is used to doing it, maybe Deepika and myself have done this level first time, but the way Siddharth treated us on the set, उससे ऐसा लगता है कि यार हाँ ये हम बड़े आराम से कर लेंगे। Even if it goes wrong, the way he brings it back without creating tension, I think his biggest, of course he's made love stories, he's made action films, and inshallah he'll make dramas. War was a drama actually. There were so many wonderful genres that he can conquer as a director, but the way he keeps action easy and fluid and happy on the sets is absolutely marvelous and fantastic. जो atmosphere set पे करते हैं, so lot of it has got to do with Siddharth's own nature on sets कि action को किस तरह से ये treat करते हैं with goodness and happiness on the set. क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली है। सक्सेस हमेशा, सफलता जो होती है कई लोगों के दिमाग खराब कर देती है, कई लोगों को पागल बना देती है, लेकिन हमेशा सक्सेस के पीछे कुछ लोग ऐसे जो दौड़ते नहीं है, सिर्फ अपना काम करते हैं। मैंने अधिकतर शाहरुख के इंटरव्यू में सुना है ये बात। क्या भूख है भाई, ये ऐसा लगता है कि यार और काम करना है। ऐसा नहीं है यार कि मैं एरोगेंट नहीं हूं। प्लीज इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो तो है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। शाहरुख नई बात कीजिए, आप शाहरुख नई बात कीजिए, आप तो हैं बेस्ट। नहीं, अच्छा, मैं एक्चुअली नई बात जो है मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ और बदतमीज हूँ। मैं नहीं हूँ। सुबह यही सोच कर हमको उठना है कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, you have to believe in the morning in spite of knowing that everybody is better than you. You have to wake up with the confidence that I'm the best today and I will do my best. Then you succeed. So that's why I say I'm the best, not because I really believe I'm the best. And success के पीछे बहुत लोग होते हैं, और आज हम genuinely it should not become boring because we are entertainers, but there's so many people to thank, like John talked about so many people, Shalina, and the teams, and I would take a moment to tell Deepika also, our personal teams who have been so loving and helpful through this, Arun, Raj, Ravi, Bengali, Sudhir, Pooja, they've worked so hard on each one of us, and क्योंकि ना यूनिट बहुत छोटा था, क्योंकि कोविड में फिल्म शूट हुई है, we kept it very small, so it became very very important जो हमारे लोग हैं
they enjoy the film as much. They're not just working on a film. And I think everybody's emotions have come into it and helped us. And Deepika, you should also mention all your people because इसके बहुत Hollywood type लोग हैं साथ में, तो मैं उनके नाम याद नहीं रहते. Half our people are the same, but Shalina, who's done the styling for both of us, Mamta, who's done John's styling, Anil Chinnappa, who never likes to be seen anywhere, but we've been working together for as long as I've been a model, 15 years. Yanni Sapatori, who's also I've been working with now for the last many years. This is in fact his first movie, guys, so give him a round of applause. Sanu, who has been with me from the start of my career. Vishal, who's also been with me from the start of my career. Jalal, who's a star himself, everyone knows it. Everyone at Collective, Vijay, Anjali, Tina, Jaya. It's endless, guys. It's a long list of But I people. thought there'd But be I think more. the point being that... Sorry. No, you say it first. No, I think the point being that the actors and the director and the producers always walk away with all the credit. And that's the reason at the end of a movie you always sit and wait till the credits are over, because every single person, even your van driver, who's responsible for making sure your van reaches there so that you can get ready, the generator person, the first person who comes and puts that light on every morning so that you can go and shoot, right? And that's why I think it's so important to sit there and watch all of these credits in respect for all of the work that has gone in. We walk away with all of the credit. Everyone's saying we look amazing and this film is amazing, but none of it would have been possible without all of these incredible people. क्या बात. Also, Meenakshi, Venki, But- Peru, but- Abdul, everybody. Yeah. And sorry, my manager is such a big fan of Shahrukh. First day she wore a t-shirt for him, "You're my favorite." So I was like, she was blushing. And she said, "You destroyed my idea of romance." Because, and he smiled with his two dimples and she just nearly fell down. And just to let you know, between the three of us, we have 6 dimples. Love you too. दीपिका, यशराज के साथ अपने आप में बहुत ही यूनिक है काम करना, जैसे भी सिद्धार्थ बता रहे थे, सिद्धार्थ के साथ भी काम करना. यशराज के बारे में कुछ बताइए, कैसा रिलेशन रहा और ये कहानी, ये स्टोरी अपने आप में बड़ी यूनिक थी, और सिद्धार्थ के साथ जुड़ना, ये भी तभी तो रिकॉर्ड बनते हैं. कहते हैं ना, 1 और 1 2 बने तो क्या बने, 1 और 1 11 बने तो सब कुछ बने. ऐसे ही बोल दिया. I mean, बहुत अच्छी लाइन है. थैंक यू. Well done. बोल दिया. रात भर प्रिपेयर की थी ना. अभी निकल गया. जी. as a complete outsider, when I just entered the film industry, and it can only be a dream that one day you will be presented by Yash Raj. Never in my wildest dreams did I imagine that not one film, but I've done 3 or 4 films with Yash Raj. But this one definitely being the most memorable, and I give all the credit to Yash Raj, to Adi Chopra, and to Siddharth Anand for thinking of a female character like this. I think to see how cinema has evolved and to see how female characters are being written, the fact that Sid thought of this and thought of me in it, and the fact that I think a movie like this and a character like this is only going to empower and encourage more writers to write female characters like this in movies moving forward. So I'm grateful for that opportunity. क्या बात. किसका? अच्छा. देखिए भाई, मेरे पास क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आप देते रहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा है. घबराइएगा मत. आज आराम से इत्मीनान से बैठे हैं यहाँ पर और खूब सारी बातें करेंगे, इसलिए प्लीज आप क्वेश्चंस देते रहिएगा. मेरे पास जो क्वेश्चंस आए शाहरुख में वही से पूछ रहा हूँ लगातार. जॉन, एक बहुत ही कमाल क्वेश्चन आया कि आपने इतने सारे फाइट सीक्वेंस किए अपनी जिंदगी में, शाहरुख के साथ पहली बार थे इस फिल्म में, तो कैसा लगा, कितने नंबर देना चाहेंगे आप शाहरुख के साथ काम करना और खासतौर से फाइट सीन? जी, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि ये पहले एक्शन
स्टार क्यों नहीं बने, बिकॉज ही इज सो गुड इन एक्शन, क्या बात है। सो फ्लेक्सिबल, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे एक बारी कहा कि हिट मी, एंड आई सेड नो नो नो, और मैंने कहा एक्चुअली आई सेड यू आर द नेशनल ट्रेजर ऑफ द कंट्री, आई कांट हिट यू. So because क्योंकि मुझे डर लग रहा था if there is some slight contact also, there must be I think about शायद 100 करोड़ शाहरुख खान fans. So but all in all he was fantastic in action, और very confident, brilliant. तो एक्शन सुपरस्टार को देखते हुए कैसा लगा आपको? You know, this is actually the most underrated quality, one of the most underrated Correct. qualities about him. Action is like dance. It's all about choreography, and it's all about precision and timing, and you have to have presence of mind when you do action. And he does it so well. And it does, you know, of course he does it in an action movie, but he does it even when you're not doing an action movie. His presence of mind, of like, just his space and surroundings is something that I think all of us as actors have learned from him. क्या बात है। शाहरुख, क्या खाते हैं आप? ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड की हर कोई तारीफ करता है। मेरा पास्ता, इसका मेरा पास्ता, पास्ता. जॉन एक पास्ता बनाता है, अच्छा, और आप उनको पिज्जा खिलाते हैं? मैं सोच रहा हूं कि मैं सिर्फ अपना पिज्जा खाऊं, इसका पास्ता कभी फिर ना खाऊं. इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझसे सही नहीं गई, लेकिन मैं अपने प्रेम की वजह से जॉन की जो तरफ है बोल नहीं सका. आज मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूं कि भाई वो पास्ता तू भी खाना छोड़ दे प्लीज. बहुत ही अलग सा टेस्ट है. अच्छा, हाँ, ऐसा लगता है कि कार्डबोर्ड को 20 साल कबर्ड में रखा है और निकाल के चबाना शुरू कर दिया. बहुत ही अलग सा है. एंड दैट्स ऑल ही ईट्स, दैट्स ऑल ही ईट्स. पास्ता पास्ता पास्ता, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड. सिद्धार्थ, इसमें जो एक्शन की लगातार बातें चल रही हैं, तो मतलब ये हॉलीवुड में ऐसे होते थे, लेकिन पहली बार मैं देख रहा था, मुझे 2 या 3 सेकंड के लिए मैं भूल ही गया था कि कौन सी फिल्म देख रहा हूं, क्योंकि इतना बढ़िया चीज चल रहा था, इतनी बढ़िया सीक्वेंस है. तो अब क्या है, मतलब अगला क्या होने वाला है इसके बाद? जी, बॉलीवुड में. हाँ, बता दीजिए. अरे बता दीजिए. पठान आई है, पठान हिट हुई है, तो उसके बाद क्या बनाएंगे? अरे इंशाल्लाह. शाहरुख क्या बोलना चाहेंगे? जनता कुछ कह रही है. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स यार, इट्स सच अ बिग एक्सपीरियंस. मैंने जैसे बोला, मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़े दिन हैं ये. मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि इतनी खुशी बहुत सालों बाद हमने देखी है. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिल्म मेकर, फिल्म कलाकारों की ज़िंदगी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उसी से जुड़ जाती है कि अरे हिट हुई क्या. सारी फैमिलीज जो है उनके साथ, कितना भी उन्हें जुदा रखना चाहें, लायदा रखना चाहें, लेकिन वो जुड़ ही जाते हैं. दे गेट टुगेदर. सो इट्स रॉन्ग एट टाइम्स, बट गुड डेज permeate into our families, and I'm very happy. So yes, I'm just very happy with the opportunity given to me by Siddharth and Adi. And you see, these are my co-actors and friends. So opportunity given to all of us, I'm sure. And inshallah, whenever he wants me to do Pathaan 2, I'll try and be bigger, better. और इस बार मैं बाल यहाँ तक उगा लूँगा. And I'll try my best to be as good as the films that Siddharth makes as a director, and Adi produces, and all the writers. And कि हम खरे उतरें. See, actually, because हमें मालूम है सिद्धार्थ जो हैं बहुत प्यारे इंसान हैं. प्रेम से हम इन सबको, हम इन्हें बोलूं, मैं गाना गाता हूं. जी जी. लॉली लॉली, हम सबका दिल तुझ पे आया लॉली. मैं चढ़ जाता कहीं पे, लेकिन लॉली के साथ कुछ राइम नहीं किया. So I just want to say thank you to him for giving me this opportunity. Thank you to Adi, and I will try my best. If they ever want to make a sequel with me, it will be my honor. It will be I will try my best again as I tried in this film, and it turned out okay. पठान फिल्म 100 करोड़ के लगभग होने जा रही है, एंड जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबने मैसेजेस भेजे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं. 100 करोड़ एक थिएटर में बोल रहे हो?
ओके सिद्धार्थ, तो अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म आती है उसके पहले, जैसा आपने कहा कि आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, कूल रहते हैं, फैन क्लब बहुत प्रेशर था मेरे रेडियो स्टेशन में जी। फैन क्लब इतने सारे वहां मौजूद थे, तो इतने बड़े सुपरस्टारों को मैनेज करना और उसके बाद कभी प्रेशर रहता है दिमाग में? ये इतने फैन क्लब, ये मेरे को मैं जब 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 मैं भी गाने लग गया था। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, वॉर के बाद जब हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं, उसके बाद हमारे पास ये स्क्रिप्ट थी और मेरे पास ये टाइटल पठान था काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी सालों से। एंड मैं इनसे बात भी कर रहा था कि एक दिन पठान बनाएंगे, और ये होगी कुछ बात 8-10 साल पुरानी। कुछ कहानी नहीं मिली जो ऐसी हो कि हम जुड़ सकें, या मैं लायक नहीं था इनके साथ काम करने के तब। लायक तो अभी भी नहीं है बेटा। विल टॉक। तो एक होता है कि क्या करें, एंड तब हम गए इनके पास एंड कहानी बताई। और मेरा एक हर फिल्म मेकर का, आई थिंक एक्चुअली एक हर फिल्म मेकर की तरह मेरा एक ऑब्वियसली विश लिस्ट थी कि एक दिन मैं शाहरुख खान के साथ पिक्चर बनाऊं। एंड आई थिंक यू हैव टू अर्न अ शाहरुख खान फिल्म, एवरी फिल्म मेकर हैज टू अर्न इट। एंड आई थिंक वो मेरी एक जर्नी थी जो मैंने पूरी की, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट द गिफ्ट टू डायरेक्ट शाहरुख खान। नाउ पिक्चर बनने लगी, लाइक आई सेड, मेरे पास कभी बाय गॉड्स ग्रेस, मैं पहली पिक्चर हो, सलाम नमस्ते हो या कुछ भी हो, मैं बहुत आराम से सोता था, मुझे कुछ टेंशन नहीं थी, आई हैड नथिंग टू लूज। इतना इन्वेस्टेड हूं मैं फिल्म में, बट मैं थोड़ा इतना स्ट्रेस नहीं लेता लाइफ में। तो हमने पिक्चर बनाई, बहुत मेहनत की थ्रू द पैंडेमिक। बट पिक्चर के 2 महीने पहले आई रियलाइज्ड दैट डायरेक्टिंग शाहरुख खान is a responsibility, and that a filmmaker, I think this goes out for all filmmakers who direct him, because he is actually like clay. इनको आप जो बोलो वो करेंगे without any loss of faith in you. He trusts the director so much. So through that I realized that if by any chance a Shahrukh Khan film doesn't perform well, it is only the director that has failed him, not him, because he has given everything that you asked for. True. क्या बात है। So 2 महीने से बचे थे पिक्चर के, and I just realized that the responsibility of Shahrukh Khan film because of his fan clubs. I just realized वो उनसे कितना प्यार करते हैं। आई थिंक इसको बदल के हम कर दे, वोट फॉर। I fucking forgot what I was saying. Yeah, so it's like I said, it's a responsibility, and I realized इनके फैन क्लब्स इतना प्यार करते हैं, और कितने बड़े फैन क्लब्स हैं वो देखिए। तो तब जाके पता चला कि ये जो मैंने ले लिया है, मैंने कितना बड़ा पहाड़ अपने सर पे लिया है। एंड आई थिंक अब मैं रिलीव्ड हूं, मेरे पास इमोशन ही नहीं बचा है कुछ। आई थिंक इतना डर, इतना स्ट्रेस था कि अभी ऑडियंस ने और मीडिया ने हमें इतना प्यार दिया है, और इतना हमारा लास्ट 2 महीने थोड़े स्ट्रेसफुल भी थे टू बी ऑनेस्ट। जो कुछ माहौल बन रहा था फिल्म के दौरान, एंड सब ने हमें सपोर्ट किया, और सब बड़ी तादाद में आए हैं पहले दिन पिक्चर देखने के लिए। तो आई थिंक समवेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कम थ्रू, और मैं थोड़ा सा खरा उतरा हूं कि मैं शायद एक और पिक्चर के साथ बना सकूं। क्या बात है। शाहरुख, यशार फिल्म्स ऐसी फिल्म पूरी कंपनी है जिसने 2018 के बाद 6 फिल्में जिनकी लगी और 50 करोड़ कमाए। ये वाकई बहुत ही यूनिक है, और एक बार बधाई देना चाहूंगा तमाम ऑडियंस को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं वॉर और एक था टाइगर की, भाई 3rd ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है।
इतना जो प्यार दिया है यशराज फिल्म्स ने, तो आप जितने सारे प्रोडक्शंस में काम करते हैं, जितने सारे खास आप अपने प्रोडक्शन में भी काम करते हैं और दूसरों प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो यशराज में खास तौर से आपको प्यार कुछ ज्यादा ही नजर आता है। आपने यश जी का इंटरव्यू भी लिया था, मुझे याद है। एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है। मैं यश जी जब यशराज के हेड थे, सो ही गेव मी टू मच लव। हमने डर से शुरुआत की। आई थिंक हमारे बहुत साल साथ में गुजर चुके हैं। और द मेन थिंग इज दैट आई बिलीव इन फिल्म मेकिंग एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज फिल्म मेकर्स, एज अ टीम विच इज यशराज, नो गट्स नो ग्लोरी। एंड सम ऑफ द बिगेस्ट गट्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, ऑनेस्ट बिलीव, चाहे वो अहेड ऑफ इट्स टाइम लम्हे थी यश जी की, चाहे वो सिलसिला थी। मैं हिट फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्त की और इन सब की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि दिल वाले दुल्हनिया बोल दूं, डर बोल दूं, दिल तो पागल है बोल दूं। But I can tell you honestly, there have been some, to me, one of the greatest films they've made with me, which did not do well at all, is Fan. To take a chance. And Yashraj stands for taking chances. And it is very wrong when somebody belittles a creative team like Yashraj and says, "Arey yaar, inki wo film theek nahi thi." Of course, none of them there do it with any other reason but to please the audience. My love for Yashraj, of course, stems from Yash ji and Adi and Rani and Uday and Pam Aunty and everybody who's loved me like their own family. But as professionals, I think Yashraj film has lots of guts to make different films. People cannot forget the ease with which something so wonderfully different at the peak of their career to make a film like Lamhe and take a chance. You know, to take chances, not just sit on their past laurels and make. Even this universe, you know, the kind of expenditure these films entail, the kind of money and time that has to be spent, the kind of excellence. Yashraj has started his own VFX studio to be able to facilitate films like this. So I think it's a big, chancy, risk-taking, wonderfully gutsy production house, professionally speaking. As friends, I just love them to death. I think they're responsible for who I am today. But beyond all that, I think professionally, it's an amazing set of people. Akshay, I don't know if he's here. Some of the team members are here. People who've headed it, even in the post-release of the film. All of them are here. They all love cinema. And I think to make successful cinema, it's a very simple line that you have to... I tell this to everybody. I would like to say it again. If you can't die for cinema, you have no right living off it. And Yashraj is like that. शाहरुख, हमने 2 फिल्मों का और नाम लिया यशराज फिल्म्स के दौरान ही। तो जब सफलता मिलती है, जब इतना प्यार मिलता है, और कई फिल्में थोड़ी सी नहीं चलती हैं, कई फिल्में बहुत ज्यादा चलती हैं। पठान तो मुझे लगता है कि 2000 करोड़ हो गए। जी हाँ, 2000 करोड़ तो होगी, तो मतलब समझे वाली बात है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या महसूस करते हैं आप जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है या कम थोड़ी सी नहीं चलती है? क्या फील करते हैं आप? एग्जैक्टली क्या मन स्थिति होती है? एग्जैक्टली सेम स्थिति होती है जो आई एम श्योर इन सबकी भी होगी इस वक्त। हमारी फिल्म अमूमन फ्राइडे को रिलीज होती है, वेडनेसडे को हुई, तो हम फ्राइडे को मानते हैं अपना फिल्म का रिलीज का एक नॉर्मल डे है। अभी हॉलीडे था तो हमने पहले रिलीज किया, टीम ने कहा। बट मालूम है और करोड़ आ गए। क्वेश्चन आ रहे हैं सर क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है, उन्होंने कहा कि फेंको। सर फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, हम सबके लिए बहुत, कोई नहीं सोता, कोई सोता है, यू नो, कोई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, कोई सिर्फ पास्ता खाता है, कोई हम सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं उसके साथ डील करने की। लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म अगर संडे को खराब हो जाती है तो सिर्फ एक ख्याल आता है कि मंडे को मुझे उठकर और मेहनत करनी है कि मैं इससे बेहतर फिल्म बना सकूं। और अगर फिल्म चल जाती है तो संडे को यही ख्याल आता है अब मुझे और मेहनत करनी है कि इससे वाली बेहतर फिल्म बना सकता हूं। सो मंडे फॉर फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट अस, इज अबाउट गेटिंग बैक टू द बिजनेस। ऑफ कोर्स, प्रायोजक प्रभु जी, मिठाई हो या नमकीन।